Please ignore the dark circles in my eyes because मैं कल रात से सोई नहीं हूँ. I was up all night witnessing a beautiful festival here in Mulki. I'll be showing you abhi. But imagine waking up to this on my birthday. 10 on 10, right? Tell me that I made a good decision. Because birthdays ना lately बहुत ज़्यादा मुझे लगता है pressure, planning, expectations के साथ आने लगे हैं. So इस साल मैंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जिससे थोड़ा मुझे डर भी लगे और excitement भी हो. So, मैं आ गई हूँ मुल्की कर्नाटका AKA the best place to learn surfing for beginners because यहाँ waves बिल्कुल soft रहती हैं. Welcome back to Varnika Checks In and today I am checking into my 30s in Mulki Karnataka by learning how to surf. I don't know how to swim, so this should be interesting. So the first step you just cannot go wrong with is to find the right school for yourself. And thank me later because I just saved you all the time and effort. In this world, we are going to review Surf's Up Mulki based on these 6 factors followed by the V factor where we decide is it actually worth the price. First up, you have to take a flight to Mangalore airport. हमारा luggage भी आ चुका है and we are really excited to head to our surfing school because we've heard a lot of good reviews. Let's begin. तो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ बैंगलोर एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट मुझे 40 मिनट्स लग गए हैं यहाँ पहुँचने में. आई टुक एन ऑटो विच कॉस्टेड मी अराउंड 800. अगर आप कैब लेते हो तो इट्स डबल द प्राइस. सो दिस इज़ द रोड टू माई सर्फिंग स्कूल. अभी मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो रहा है और यहाँ पे ऑटो रिक्शा इवन ट्रक्स भी चलते रहते हैं. प्लस मैं रात को आई तो 9:30 बजे. ट्रैफिक वगैरह अच्छा था. ऐसा सब सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है. इफ़ यूर अ फीमेल सोलो ट्रैवलर एंड इफ़ यू कम इन अ ग्रुप देन इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल. पास में मुझे कुछ जनरल शॉप्स भी थी सो चलता फिरता एरिया है. Now let's talk about the rooms here. So this is quite the entrance of this surfing school and काफ़ी aesthetic बनाया हुआ है. इनके कॉमन एरिया में आई कैन सी कॉफ़ी मेकिंग मशीन, केटल, स्पीकर, लॉट ऑफ गेम्स. मुझे यहाँ फ्रिज दिख रहा है, सारी फैसिलिटीज़ दिख रही हैं फॉर अ कंफर्टेबल स्टे. वार्म वेलकमिंग वाइब है. So this is a double bed situation. This is a single bed. It's your choice. आप कुछ भी ले सकते हैं. Then we have attached washroom. Have a look. It's so cute. So we have 3 washrooms, bathing area, and you can freshen up. We have an aqua at washroom number 2 and washroom number 3. It's a bit small in size but still manageable. It's like a co-living space. I really do like the quality of the linen they've used and the blankets are directly from Shimoga, which was really impressive. So one 5-bed and 3-bedded room has ACs, lockers for you, but there are no doors. But ये लोग स्कूल ऐसे खुला छोड़ के चले जाते हैं बिना बंद करे, so it's entirely safe. Now let's talk about the third category, dining experiences. Now if you're a foodie like me, आपको सर्फ के अलावा कहीं जाना ही नहीं है because मैंगो ट्री के नीचे बैठ के फैमिली की तरह रोज़ होम कुक्ड लोकल मील्स आपको कहाँ और सर्व हो सकती हैं, राइट? सर्फिंग के बाद मुझे ऐसे ही नींद आई है गाइस. मैं सीधा 4 बजे उठ रही हूँ. Now more on the surfing lessons in the videos to come, but ये साउथ इंडियन फैंटा जिसको आइस बबल भी बोलते हैं, ये मैं रोज़ पीने आती थी. हमारे सर्फ के जस्ट साइड में ही ये शॉप थी. डिनर के लिए मेरा फेवरेट था होटल बप्पा नाडू. यहाँ पे आई हैड द बेस्ट उत्तपम एवर, सो इफ यूर इन मुल्की डोंट मिस इट. Now let's throw some light upon the fourth category, which is hospitality, which truly sets them apart. They are famous for showing you Mulki beyond surfing. ये अपने सर्फ स्टूडेंट्स के लिए दिम्बारा कॉफ़ी एस्टेट से स्पेशल कॉफ़ी ब्रू करवाते हैं एंड दे मेक फ्रेंच प्रेस कॉफ़ी इन द स्कूल इटसेल्फ. आफ्टर अ गुड सर्फिंग लेसन एंड नैप टाइम, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड. ट्रस्ट मी. 2 घंटे के सर्फिंग लेसन के बाद मैं टैन तो काफ़ी ज़्यादा हो गई हूँ. बट यू कैन सी द ग्लो. हार्ड वर्क पेज ऑफ यू गाइस. मैं पास से कुछ स्नैक्स भी लेकर आ गई हूँ. सो रिफ्रेशमेंट्स के बाद मिलते हैं आपसे. They were very homely and chill vibe at the place. सब लोग साथ में गेम्स खेल रहे थे पहले दिन. It was so good. टेरेस एरिया है यहाँ पर. दे डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. मे बी टुमारो वील बी डूइंग. यहाँ पर हम अपने कपड़े सुखाते हैं आफ्टर अ गुड सर्फ सेशन उनको धो के. सो या वही करने हम आए. सर्फिंग करने के अलावा भी बहुत एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको मुल्की में मिलेंगे, जैसे कि बहुत ही प्यारा सनसेट जो हम देखने जाते थे एवरी इवनिंग. हैव अ लुक एट दिस. दिस इज माय फर्स्ट डे इन मुल्की. आई वाज मेस्मराइज्ड विद द स्काई चेंजिंग कलर्स. Got to witness a beautiful festival. I mean, what energy.
नॉर्थ इंडिया में जैसे मेला बोलते हैं ना, यहाँ जात्रा हो रहा था जहाँ पे देवी की शक्ति आप अपनी आंखों से किसी के अंदर आते हुए देख सकते हो। गूज बम्स आ गए थे यार। यहाँ पे बहुत फेमस एक टेम्पल है बप्पा नाडू। कुछ चीज़ें जब तक आप अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेते हो ना, आपको यकीन ही नहीं आता है। और दिस वॉज डेफिनेटली वन ऑफ दोज मोमेंट्स फॉर मी। आई थिंक किसी भी जगह को जानने का सबसे बेस्ट तरीका है वहाँ के लोकल लोगों से बात करना, उनके लोकल कल्चर्स को जानना, उनके ट्रेडिशंस का पार्ट बनना। एंड आई एम ग्लैड आई कुड डू इट। And it's time for the V factor, which of course is learning surfing. And it's not just about riding the waves, you guys. It's like whole new experience of learning something. But before starting, there are so many questions that cross your mind. Like, can I actually learn surfing? या फिर कितने डेज रिक्वायर्ड है एज अ बिगनर, या फिर सच में स्विमिंग की ज़रूरत नहीं है क्या, बिकॉज इतनी सारी रील्स हम लोगों ने देखी होती हैं, या फिर बेस्ट टाइम क्या हो सकता है सर्फिंग का। एंड सो मैनी क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में भी थे कि ये सेफ भी है या नहीं, या फिर क्या कॉस्ट्यूम चाहिए, एंड विल आई बी इवन एबल टू स्टैंड ऑन द बोट। ये सब जानने के लिए आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा। सो टुडे वाज आवर डे 1 सर्फिंग एक्सपीरियंस, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वाइप आउट्स, लर्निंग एंड फन। गो गर्ल। ये छोटे छोटे बच्चे भी सर्फिंग सीखने आते हैं गाइस, और मैं 30 की एज में आके सर्फिंग सीख रही हूँ। बट आई एम ग्लैड दैट आई डिसाइडेड टू फाइनली गो। 2 घंटे का मॉर्निंग सेशन खत्म करने के बाद माय इंस्ट्रक्टर स्टीवन इज coming back. That's me sitting by the beach because we totally earned it, you guys, and hitting it off really well on first day. I'm so glad we're doing Mulki just right. Also, the verdict is out, which means staying at Surfs of Mulki is totally worth it, you guys. So comment part 2 and I'll see you in the next one. Bye. Because luxury isn't just how it looks, it is also how it feels. This is Varnika Checks In.